नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। Can we subtract vectors using cosine law? Can we subtract vectors using cosine law? Again, start with this question. Vector A, vector B, angle theta. And now we have to find how much is vector A minus vector B equal. क्या आंसर होगा बताओ? लास्ट क्लास हम लोग क्या कंक्लूड किए थे? Subtraction is equivalent to addition or not? So if you are supposed to, you are supposed to subtract these two vectors or add? Add which two vectors? A and B or A and minus B? So can we use cosine law? Answer is yes. क्या आंसर आएगा बताओ? डायरेक्टली आंसर लिखो, क्या लिखोगे? पहले यस लिख दो और उसका आंसर क्या आएगा? यूज दिस फॉर्मूला ना, यूज दिस फॉर्मूला। क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी या बी स्क्वायर? बी स्क्वायर ही रहेगा ना। इसके बाद सो सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस minus 2ab. Now why you are suggesting minus sign here? Because a and b or a and minus b? Because of minus b. ऐसा लिख दो, ऐसा मार्क कर दो, ये तुम्हारा आर्गुमेंट है। Is this correct? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Let me put it in this way. What is A here? Vector or magnitude of vector? So what is A here? Magnitude of vector A. What is B? Magnitude of second vector. How much is second vector? So how much is magnitude of minus B? Is it minus B? Magnitude of vector can be negative or always positive. So this argument is correct or wrong? Wrong. You cannot say that. That is wrong thing to say. क्यों गलत हुआ बताओ? Magnitude of vector is always positive. यहाँ लिख दो पहले. Magnitude of vector is always positive. Done? क्या मिस्टेक हो रहा था? क्लियर है? तो अब आगे लिखो। इस क्वेश्चन को पहले ऐसा करते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, ये हो गया क्वेश्चन। एंड देन राइट वी आर सपोज टू add vector A and vector minus B. Write that. We are supposed to add vector A and vector minus B. Next line. In order to use cosine law, we need to know, number one क्या था? Magnitude of first vector, right? We need to know number one, magnitude of first vector, which in this case implies how much? A, isn't it? Second क्या था? Magnitude of second vector. कौन है second vector? B or minus B? But how much is magnitude of that? B. So write that. Magnitude is B. Third क्या चाहिए? Angle between two vectors, right? Angle between two vectors. How you find angle between two vectors? तो इसमें डायग्राम जरा ड्रॉ करो। तो क्या गिवन है पहले वो ड्रॉ करो। वेक्टर ए और माइनस बी गिवन है या ए एंड बी गिवन है? ए एंड बी गिवन है ना। फिगर में माइनस बी था या बी था?
B. And you need angle between what and what? Where is minus B? Opposite to A or opposite to B? So in same diagram show minus B. यही है ना minus B? Is angle between vector A and second vector theta? Is angle between first and second vector theta or 180 minus theta? 180 minus theta. For 180 degree शायद पता होगा we also use radian में क्या यूज करते हैं? Pi, है ना? हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? साइन कॉस का आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ डिग्री विल यूज रेडियंस. और केवल ये याद रखो 180 डिग्री कितना रेडियन है? पाई. तो 90 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 2. फाइन. सो हाउ मच इज दिस एंगल? 180 माइनस थीटा मीन्स व्हाट? पाई माइनस थीटा. सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी इज थीटा और पाई माइनस थीटा. तो तुम मिस्टेक फिर कहाँ कर रहे थे बताओ? जो पहले फॉर्मूला लिख रहे थे उससे जो अप्लाई कर रहे थे तो गलती कहाँ हो रही थी? तुम क्या एंगल ले रहे थे? थीटा. एंगल क्या होना चाहिए था? तो मिस्टेक कहाँ होता है इस फॉर्मूला में? एंगल. मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. नाउ यूज दैट फॉर्मूला. C इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और पाई माइनस. Write that. Done? Now again, जिन लोगों को नहीं पता है वो लिख लो. जिन लोगों का मैथ्स है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे. cos pi minus theta is equal to minus cos theta. So write this. Math skill. Cos pi minus theta is how much? Minus cos theta. Cos of pi minus theta is minus cos. तो इतनी बार जिन लोगों का मैथ्स नहीं है तुम इतनी बार फिजिक्स में यूज करोगे कि अपने आप याद हो जाएगा. तो एक बार अगर नहीं पता है तो ये नोट करके छोड़ दो. Cos of pi minus theta is how much? Minus cos theta. So what you get? How much is C equal to? Under root plus and minus 2AB cos theta. ये आ गया. माइनस साइन आ गया ना. तो ये माइनस क्यों आया? माइनस बी के कारण या बिकॉज ऑफ एंगल? बिकॉज ऑफ एंगल. ये करेक्ट. बट फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि तुम भी तो यही आंसर बता रहे थे. तुम्हारा भी आंसर क्या आ रहा था? वही आ रहा था ना. तो तुम 10th तक किस चीज पे फोकस किए हो बताओ? आंसर पे. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारे लिए? आंसर ही था ना. स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल आंसर था. बीच में कुछ भी लिख दिए. अंत में क्या? अगर ट्रिग्नोमेट्री है कुछ प्रूफ करने को मिला क्या करते थे? लास्ट लाइन क्या होता था बताओ? LHS इज इक्वल टू RHS. बीच में कुछ भी तुम कमेंट्री भी लिख के छोड़ सकते हो. जो मन में आया लिख दिया और अंत में प्रूव्ड. लेकिन आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ. क्या कारण है उसका? बिकॉज तुम अगर आंसर जानते हो तो एक क्वेश्चन बनेगा और अगर मेथड जानते हो तब कोई भी नया क्वेश्चन बन सकता है. जैसे रियल लाइफ से एग्जांपल लें कि आंसर क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है. सपोज क्लास खत्म हुआ, तुम 4th फ्लोर पे हो, नीचे जाना है, तो वहां से जंप भी तो कर सकते हैं. कर सकते हैं ना. जंप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले तो नीचे ही जाएंगे ना. पहले तो तुम नीचे पहुंचोगे तब फिर जहां जाना है वहां जाओगे. और जो सीढ़ी से जा रहा है वो भी कहाँ पहुंचेगा? नीचे ही पहुंचेगा. तो आंसर क्या है? सेम. लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? आंसर या मेथड इंपॉर्टेंट? किस लॉजिक को, किस मेथड को तुम फॉलो करें. इसलिए हमेशा फोकस मेथड पे होना चाहिए. और ये हमेशा सीखो कि कोई भी फॉर्मूला अगर मिलता है तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1, एंड वेयर यू मेक मिस्टेक. जिसको ये पता है कि गलती कहाँ होती है, तुम फिर दोबारा गलती करोगे नहीं. तो कहाँ गलती होती है हमेशा? एंगल. ठीक है. बट एनीवे, विथ हेल्प ऑफ कोसाइन लॉ, सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन add as well as subtract. So conclude that with help of cosine law we can add as well as subtract.